Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's exciting episode of Duck Stories, a platform where we celebrate failures shamelessly. Joining me today is one of Pakistan's renowned journalists whose notable work on countering terrorism and extremism has been well received on both national and international forums. Please join me in welcoming Talat Hussain. Assalamu alaikum Talat Saab. Walaikum assalam. Thank you very much for inviting me. Welcome to Duck Stories. Great to be in the Duck Stories. तलत साहब शुरू से शुरुआत करते हैं. जानना चाहेंगे आपके अर्ली करियर ईयर से जर्नलिज्म एक इत्तेफाक था या एक चॉइस थी? देखिए, पहले तो हादसा ही था, लेकिन फिर उसके बाद ये फिर पैशन बन गया. तो आपकी एज में कैरियर प्लानिंग बड़ी मुफस्सल होती है. हमारी एराज में नहीं होती थी. 2-3 ही कैरियर्स होते थे. इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, CSS कर लें. तो CSS का रिवाज बहुत था when I was entering into professional life. So I prepared for it. I didn't take the exam. You could mark that as a duck story. कि आपने तैयारी की और उसके बाद फिर you kind of balked at the right time, the right moment. Didn't take the exam. But then I took a different road altogether. So joined the Muslim and then never looked back. Yeah. But what was the thought process? मतलब CSS I like to write. Right. I like to write, Yeah. and I thought it was a great learning experience. Tabedari doesn't come naturally to me, so bureaucracy probably would have been brutally demanding in terms of compliance. So that really, I wasn't really aware of it. Like I think it kind of showed in the choices I exercised. Journalism was really a thoroughfare of thought. ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त there wasn't that clarity. But it kind of charmed me, and yeah. And is it because you had some family influences? हमारी फैमिली बहुत पढ़ाई का बड़ा अमल दखल है, और सारे स्कूल के साथ, कॉलेजेस के साथ, टीचिंग के साथ, वो नाना पढ़नाना से, दादा की साइड से सारे पुलिस में हैं. That explains the sort of contradiction in what my background is and how I come across. So my brother, Dr. Rifat, who passed away early this year, may his soul rest in peace, was a great influence. So उन्होंने फिर high-end education introduce करवाई. He did his PhD from Colorado, Denver से. तो the whole environment was geared towards books. Reading बहुत थी, रिसाले और digest और you name it, और अखबारें और ये वो. So I guess that had something to do with it. Yeah. Wonderful. And you started as somebody who would write columns? Yeah. So I was a reporter I was a desk person to begin with. अब जब आप पुराने अखबार में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जिस तरह आपके टेलकोज ने सारा सिस्टम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया हुआ, वैसे वो नहीं होता था. तो पेपर आपके सामने पड़े, उस तरह के पेपर आते होते थे. वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होते थे डेस्क के ऊपर, फिर स्टोरीज एलोकेट होती थी, फिर पेपर पर एडिटिंग होती थी, फिर प्रूफ रीडर के पास जाता था, फिर दोबारा टाइप इन होता था, फिर करेक्शंस होती थी, एंड मिलियन लेयर्स. सो आई वाज ऑन द डेस्क. तो डेस्क पे फिर एडिटिंग सीखनी, फिर खबरों की ओरिएंटेशन लेनी. सो आई वाज अ डेस्क गाय. आई वाज रिपोर्टिंग सिटी के ऊपर, कोई सेमिनार हो गया एंड ऑल दैट, बट डेस्क वाज माय मेनस्टे. या. And then how did you move from, writing articles and then showing up on screen? Because the industry moved. Achha. And this was back in what, 1990s? Before the common era. Oh, okay. You probably weren't even born then. Probably your parents hadn't met even then. So it was long time ago. It was 1990, 91. And newspapers had such fascination because there was no other entertainment. 24/7 TV channels थे नहीं. TV अभी आज़ाद नहीं हुआ था जिस तरह हम कहते हैं. प्राइवेट सेक्टर था नहीं. तो न्यूज़पेपर्स के साथ ही फिर मैंने मूव किया, और उसमें फिर बहुत तब्दीलियाँ आई. टेक्नोलॉजी केम इन, प्राइवेट सेक्टर ओपनड अप, मोर TV channels opened up. Smartphones, which are not very smart, at least they're not used in a smart way, they came up. अगर थे मेरे ख्याल में 1992 में इंटरनेट had married the handheld phone. but पाकिस्तान में वो अराइव किया. फिर टेक्नोलॉजी kept on galloping, and I just stayed in my field. So my transitions are really the transitions of my field.
Yeah. Right. Yes, and talking about that, PTV से start किया, फिर आप जो टीवी बड़े मुझे खामखा जो है ना वो जो कहते हैं पंगे लेने का शौक है. टीवी पे यू विल बी सरप्राइज कि जब मैंने पीटीवी पे प्रोग्राम शुरू किया तो लोगों ने कहा कि क्या आप संजीदा साफ़ी हैं, आप द न्यूज़ के एडिटोरियल राइटर हैं. ओके, आप डेस्क को हेड कर रहे हैं न्यूज़ के एडिटोरियल डेस्क को, तो दिस इज़ वेरी सीरियस एंड एडिटोरियल्स डिटरमिन न्यूज़पेपर्स पॉलिसी एंड यू नो व्हाई आर यू अपीयरिंग ऑन टीवी. And so I was being, looked at as somebody who was doing something below my professional calling. People will not be able to relate to it, but that's how it was, TV at that time. लेकिन मुझे शौक था कि यार कोशिश तो करूं. And then I was also pushed into it by a dear friend who passed away, TV producer, Naveed Zafar. अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. तो उन्होंने मुझे push किया. And frankly, when I started, I didn't want to do it. It was way too early in the morning. रात को आप 2:30 बजे पेपर बनाए, सुबह आपको, and the program's name was Savere Savere. It used to be at 8 o'clock. You had to get up at 6 o'clock. And I don't think that I'm really camera friendly. At that unearthly hour, nobody is camera friendly. So फिर आपको मेकअप करना, फिर जागना, फिर टीवी पे आके, अच्छा मेरा सारा अंग्रेजी जर्नलिज्म में है काम, वो उर्दू का प्रोग्राम है और लाइव है. So I honestly told him that I want to quit. ये कितने अरसे में? कितने अरसे में नहीं, जब मैं पहली मरतबा टीवी के अंदर गया, टीवी रूम के अंदर, और फिर मेकअप वगैरह हुआ तो आई वाज ऑल डॉल्ड अप. उस वक्त वो होता भी था, मैंने कहा क्या मुझे बना रहे हैं. तो फर्स्ट शॉकर. एंड देन यू मूव्ड इन द स्टूडियो. स्टूडियोज आर लार्ज, नॉट एज एफिशिएंट एज दिस स्टूडियो इज. So cold and the camera was all around. So मैंने कहा यार ये मेरे बस का नहीं है. This is not my comfort zone. तो मैंने जानबूझ के, वैसे भी कारकर्दगी मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने जानबूझ के अपनी कारकर्दगी को और ख़राब किया ताकि मैं ना सेलेक्ट हूँ. लेकिन फ्रैंकली मैं सेलेक्ट हो गया बिकॉज nobody else wanted to do it. तो मैंने उसको कहा यार मैंने नहीं करना. So here's another duck story. I didn't want to do it, but he insisted. He said, you'll get better with time. मैंने कहा by the time I get better, frankly, I would have lost my sanity. इतना काम है ये वो, तो मैंने नहीं करना. So he kind of pushed, and this was like 5 days a week. So after about 3 months, I was pretty comfortable with it. I had made plenty of mistakes on air, and I was shamed for that. कि ये आपने क्या कह दिया, कभी पार्टी का नाम गलत निकल गया, कभी बंदे का नाम, कभी तारुफ के अंदर गड़बड़ हो गई. अब लाइव चल रहा है, कभी हमने ट्रेनिंग तो ली नहीं, तो hit and run. So I was hitting myself in the face and I was running all around, but I could not leave that studio. So yeah, but that's how I went into TV. I did a lot of radio as well. Mic training जो थी मुझे, again शुरू में किया तो नहीं हो रहा था. टीवी की आपको आदत है बिकॉज यू हैव विजुअल्स एंड ऑल दैट. हियर यू आर डीलिंग विद ऑडियंस. तो आपको पॉज कैसे देना है माइक में, आपको सांस कैसे लेना है माइक में, तो वो नहीं था. टीवी की तरह बोली जा रहे हैं. माइक डजंट रियली लाइक दैट. कैमरा में लाइक इट, माइक डजंट. तो वो इतने, उसको आप कहते हैं भंड हुए. फिर मैंने कहा यार टीवी रेडियो मेरे बस का नहीं है. फिर मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कीप ऑन डूइंग इट. बट इफ आई मे इंटरजेक्ट, लेकिन किस बेसिस पे कहते थे? आपकी आवाज बहुत अच्छी थी, you had knowledge and wisdom. Well, I don't know about knowledge and wisdom. I think I was clued up. क्योंकि मैं जर्नलिज्म, मेरा बेस था बड़ा स्ट्रॉन्ग, और डेस्क का था, रिपोर्टिंग का था. I had a degree in IR. So इंटरनेशनल अफेयर्स के बंदे उनके पास थे नहीं. और फिर बीच में 1990 के इलेक्शंस भी मैंने देखे. वो मैं मीडिया में उस वक्त नहीं था. फिर 92 के इलेक्शंस हमने 93 के इलेक्शंस किए. सो इफ यू कवर इलेक्शंस, दे लाइक यू प्लेड द वर्ल्ड कप. तो आई हैड अ गुड ग्रिप ऑन थिंग्स. और फिर मैं उर्दू अंग्रेजी में काम चला लेता था. सो इन अ वे आई वाज बाइलिंगुअल फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. बट फ्रैंकली I don't know what they saw in me. Honestly, I had my comfort zone was really writing. But circumstances and my own curiosity pulled me out of my comfort zone. So I learned that you should always do things that you don't want to do.
Get out of your comfort zone, and that's where growth is. Easier said than done. Yeah. That's where destruction is as well, by the way. There's no guarantee कि comfort zone से निकलेंगे तो बच भी जाएंगे. लेकिन बच के क्या करना है आखिर में आके. So it worked out well for me, and then industry also flourished. So अगर industry flourish ना कर रही होती तो probably my struggles would have gone to waste. So I was also a child of circumstances in more ways than one. Yeah. और इस बदलते टाइम के साथ साथ मीडिया को लेके आपका परसेप्शन चेंज होता रहा? Perception about? Becoming more comfortable and then doing more in it, exploring more. देखिए एक तो है routine is the ultimate guarantee that you will become good at what you do. So ये जो हमारे होता है ना जी बड़ा talented, there's no such thing as talent. There is interest, curiosity, passion. Talent will be exceptional, but here we're talking about a rule. So there's no such thing as talent. जब मुझे लोग कहते हैं मैं बड़ा talented हूँ, I said really? I don't want to know whether you're talented or not. I want to know whether you're hardworking or not, whether you have resilience. Can you stay the course? So Harrison Ford से किसी ने कहा you're a great actor. He said no, I'm not a great actor. I'm a consistent actor. Can you stay with the turns and twists and ups and downs and ebbs and flows and highs and lows of your field? If you do, frankly, you'll reach a comfort point. Secondly, your motives have to be clear. Initially, my motive was to somehow become financially viable. आपके पास पैसे नहीं है तो फिर जाहिर है घर वालों ने कहा कि भाई नौकरी करें जाके. That was another compulsion. So यही मिली तो मैंने कर ली फिर. So, but your passion should really drive you. आपके जो financial मामलात हैं या जो prosperity है, that should be the outcome of your passion. That's an ideal situation. So, I'm more comfortable in my skin now. Yeah. No, wonderfully said. Let's talk about ethical journalism, and I believe that this is a topic close to your heart as well. एथिकल जर्नलिज्म उन जर्नलिस्ट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो चाहते हैं कि पब्लिक को पूरा सच मिले, पूरा सच उन तक पहुंचे. और फिर जहाँ पे सेंसरशिप की बात आ जाती है, सो ऑब्वियसली इट मेक्स सच जर्नलिस्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. सो कैन यू टेल अस अबाउट सच एपिसोड्स इन योर करियर जहाँ पे आपका पूरा सच नहीं पहुंचा, एंड फिर कैसे डील किया? सो मेनी स्टेक होल्डर्स टू मैनेज. We don't want to know such. We cannot face the truth. So facts are kind of a lower degree of truth. And truth itself is very subjective. Your truth may not tally with my truth. Like Netanyahu's, fake truth probably may not probably, definitely will not resonate with Ghazan's truth. So आपके मेरे truth के अंदर जो है वो debate हो सकती है. और ट्रूथ को हम फेस नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूथ बहुत एक हैवी बर्डन है. फैक्ट इज व्हाट आई बिलीव इन. और फैक्ट क्या है? जो वेरीफाइबल है. आप ये कह सकती हैं कि ये सच है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है. ये एक आपका सच हो सकता है. मेरा ख्याल है कि आपका ये सच जो है दुरुस्त नहीं है. सच ये है कि बहुत ही बुरा है. ओके, ये बहुत ही अच्छा है. इसके ऊपर डिबेट कर लें. इस पे कोई डिबेट नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है. दैट्स अ फैक्ट. दैट्स अ वेरीफाइबल फैक्ट. द कैमरा क्रू सिटिंग हियर, other people sitting here, producers sitting here, it's being recorded. That's what an interview is, right? So मैं कहता हूँ कि जर्नलिज्म के अंदर अगर आप एथिक्स के ऊपर बात करें तो फैक्ट से कनेक्ट करें. A journalist must get her or his facts right. And if they err, they apologize and they move on. They don't repeat that same mistake. So and facts are non-neutral, by the way. And facts are scary. Truth is the scariest. Facts are scary. तो हम लोग तो शीशा देख के भी सच नहीं बोलते अपने बारे में. हर कोई हसीन होता है, हर कोई अच्छा गा सकता है, हर कोई अच्छा खेल सकता है. हम we are in denial about facts about ourselves. So I think ethical journalism मेरे लिए the long and short is, do you have your facts right? If you do, you're an ethical journalist. Yeah. In one of your articles, you said that ratings are overrated. Can you just tell us a little more about that? देखिए, रेटिंग्स जो है लोग रेटिंग्स के लिए बड़ा काम करते हैं. लोग जो है वो टीवी की रेटिंग्स की बात नहीं कर रहे. आजकल तो लोग सेल्फी खिंचवाते हुए समुद्र में गिर जाते हैं. एंड you know exactly what I'm saying
तस्वीर जरूर खींचनी है. एंड आई एम ऑलवेज वंडरिंग कि भाई आप इतने बड़े एक तारीखी बिल्डिंग के सामने, बादशाही मस्जिद के सामने के, बादशाही मस्जिद की तस्वीर खींचे भाई. आप अपना चेहरा मुबारक बीच में क्यों ला रहे हैं? बट सच इज बिकॉज पीपल थिंक दैट अदर्स विल लुक एट इट. So there is this, great temptation that nobody resists for eyeballs. So TV ला मोहल्ला उसके अंदर चला गया. उसके अंदर आप सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं या डिजिटल मीडियम पे जाएं तो थंबनेल्स बनाते हैं. ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं कि मुझे खुद पता नहीं चलता कि मेरे प्रोग्राम के थंबनेल्स बने हैं क्या. हमारे तो फिर भी कुछ डिसेंट बनते हैं, जो बाकी हैं तो ना ही जिक्र करें उनका. So but ratings are frivolous. You may get great ratings today, tomorrow your ratings will fall. Credibility is constant. If you were credible yesterday and you're credible today, you have done your work. So मैंने कभी काम नहीं किया रेटिंग्स के लिए. देखते हैं कि पब्लिक ट्रेंड्स क्या हैं, उसके मुताबिक एडिटोरियल जजमेंट्स भी एडजस्ट कर लेते हैं हम. लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि शो अगर किसी ने नहीं देखा तो अच्छा शो नहीं है. तो हमें किसी ने बहुत अच्छी बात की, उसने कि यौम क़यामत जो है वो बहुत सारे अंबिया कराम ऐसे होंगे जिनके मानने वाले बहुत कम होंगे, ना होने वाले होंगे, लेकिन वो अंबिया कराम की लिस्ट में होंगे. हम तो खैर उनकी जूतों की खाक भी नहीं है. लेकिन गाइडलाइन बड़ी वाज़ेह है कि आपने पब्लिक डिमांड पे काम नहीं करना. इसलिए अगर आप डॉक्टर हैं तो अब मरीज आपके पास आएगा तो आप उसकी डिमांड पे उसका इलाज करेंगे? No, you will probably run counter to all his or her expectations about his own disease and say, "Bhai, मैं डॉक्टर हूँ." So for journalists to be competent enough, one test is, are you following the public? Or are you telling public what to follow? So ratings is following the public. I am no fan of that. You're a professional. You should know what stories matter. And you should tell people that that's the story to focus on. So credibility उससे बनती है, रेटिंग बेशक ना बने. Rightly said. आपके काम में आपने UNDP, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया है, एंड पर्टिकुलरली यू फोकस्ड ऑन काउंटरिंग टेररिज्म, वायलेंस, रेडिकलिज्म. लेकिन जब इस तरह के क्रिटिकल टॉपिक्स पे आप काम करते हैं, सो यू आर एक्चुअली पुटिंग योर लाइफ बिफोर एनीथिंग एल्स एंड योर लाइफ इज़ एट रिस्क. और इसी से रिलेटेड जो 2010 में काजा फ्लोटेला का वाक़या हुआ था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब आप उस मोमेंट में थे, उस सिचुएशन में थे, एंड व्हेन थिंग्स वेंट साउथ, तो क्या ज़हनी कैफियत क्या थी? ये जो मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, ऑडिट की कंसल्टेंसी करता हूँ. मसलन अगर वर्ल्ड बैंक ने किसी हुकूमत के साथ प्रोजेक्ट किया है तो दे वुड वांट अ ट्रेंचेंट unbridled audit. So they would put me in the field and say कि हमने 6 जगह पे स्कीम्स लगाई हैं, 8-10 यहाँ पे लगाई हैं, 12 वहाँ पे बिजली घर बनाया है, तो इनका ऑडिट करके दें. मैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कंसल्टेंसी नहीं करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर का ऑडिट की कंसल्टेंसी करता हूँ या कम्युनिकेशन का करता हूँ. ये जो बाकी मेरे एपिसोड्स हैं, फ्लोटेला का आपने जिक्र किया, दे आर प्राइमरली माई प्रोफेशनल परसूट्स. देखें, अगर आप बीच मेडिटेरेनियन हो और आपकी शिप के गिर्द जो है जोडियक बोट्स लगे हों जिसके ऊपर इसराइली कमांडोज हों और ऊपर हेलीज लगे हों जहाँ से कमांडोज आपको निशाना बना रहे हों और आपके इर्द गिर्द डेड बॉडीज पड़ी हों एंड बुलेट्स आर रिकोशेइंग, यू आर ऑन अ शिप, राइट? यू नॉट, देयर इज नो प्लेस टू रन और हाइड और जंप. सो ऑब्वियसली ज़हनी कैफियत क्या होगी कि यही होगी कि बस दैट्स इट. That's it. Yeah. So you see people kind of fall and die and get injured all around you. And you're supposed to be also filming it. So that's it. We thought that's it. And though, there was one relative, relatives can be quite funny as well. तो मुझे कह रहे थे कि यार आप तो समुद्र में छलांग लगाते. मैंने कहा भैया मेरी ट्रेनिंग नहीं है, आपको 2.5 फुट का पूल नहीं है जहाँ पे उस वक्त वेव जो है, हेलीज वर सकिंग अप वाटर एंड 9 फीट की तो वेव जारी होती है. खैर एनीवेज, people will say strange things about strange occasions. Yeah, so it was that's it. Yeah. How did it impact your mental health even when you came back and you reunited with your family and your loved ones? उससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल आउटलुक पे कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा. उसके बाद मैंने ये तहिया किया, मैंने डक स्टोरीज में आना है. सो यू कैन इमेजिन कितना मैं मुतासर हुआ 2010 की एपिसोड में. 2025 में डक स्टोरीज के अंदर बैठा हूँ. No, on a serious note, I think it, and I can connect the two. It was not a frivolous remark. Duck stories are all about humbly recalling your low points. I think that really humbled me.
that you control nothing. When you're caught up on a ship, bullets are flying, people are dying, and you say that's it. You realize you control nothing. So what do? The only thing that you control is a camera. So what do? You start to film. So in the middle of it, we started to film. Myself and my producer Raza. We just filmed and filmed and filmed. And then we were able to bring one footage, one full DV as we call it, back from the Israeli custody. वो हमने एक छुपा दी शिप के अंदर, उन्होंने फिर शिप को ले गए, फिर शिप को उन्होंने सारा सामान तबाह कर दिया, तो उसी में चली गई। एक हमने वहाँ पे बहुत बड़ी शिप थी, उसके अंदर लगे हुए थे टीवी स्क्रीन्स दर्जनों के, उसका हमने नीचे स्ट्रैप निकाला तो उसके अंदर हमने डीवी घुसा दी। फिर वो जब वो स्क्रीन्स इसराइल ने टर्की को वापस की तो हम गए वहाँ पर और हमने उनमें से उन टीवी स्क्रीनों में से 14 या 18 थी, उनके अंदर से वो डीवी निकाल ली। Somehow it survived the ruthless scrutiny that Israel subjected that ship to. And that is available on YouTube. And it is original footage. The only surviving footage from that episode. तो शायद एक और footage available है जो BBC ने खरीदा था एक और जर्नलिस्ट से, उसको स्मगल आउट करके ले गया था। उसके अलावा कोई footage available नहीं है. This is the only footage that survived. So yeah, it was a humbling experience. You see death from very close quarters. Yeah. Did you have any PTSD? बताया तो symptoms? है. This is a symptom of that. I'm preparing a duck story. Do you still get any flashbacks of the episode? Kabhi I ख्वाब don't, में, honestly, I kabhi- mean, I would like to then pretend that I'm so open about it. If I did experience it, I would express it. But I tell you, I was hardened by the earthquake that devastated Pakistan like 5 years ago. The kind of death and destruction that I saw at that particular point in time, वो magnitude ही मुख्तलिफ था और वो coverage का scale ही मुख्तलिफ था. Or of course their post-trauma stress was huge. I mean, you would break down and you didn't want to, do your work. You're dealing with death and, bodies being dug up and children trapped in rubble and you name it. So I think in a way, my processing mechanism when this was happening to me, the difference was that was happening to others. But this was happening to us. So in a way, probably my processing mechanism better हो गया होगा 5 साल के अंदर. तो I was able to process it well. और फिर सांस लेने का मौका भी नहीं मिला. फिर उसके बाद साथ ही फ्लड शुरू हो गए. Yes. फिर सियासी मामलात और किस्म के हैं. So in a way, you just don't have time to really reflect on this. Lekin I think my wife will be the right person to ask this question because she would have noticed it. But to the best of my documented knowledge, my mental faculties are intact. Yeah. Wonderful. आपने अभी बात की ज़ल्ज़ले की, उसी से रिलेटेड आई हैव अ क्वेश्चन कि आपकी फील्ड में और स्पेशली रिसेंटली अभी मैंने देखा कि यू वर इन बुनेर एंड यू वर कवरिंग दीज एरियाज हु वर बैडली अफेक्टेड बाय दीज कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स. जब आप ऐसी कवरेज करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी स्टोरीज हैं जी घर बर्बाद हो गया, पूरी पूरी फैमिलीज ख़त्म हो गई, एज अ ह्यूमन डज इट टेक अ पार्ट ऑफ यू? It does. देखें, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक फैंटास्टिक जगह है जर्नलिज्म के लिए. It's a very happening country. Just when you think that nothing else can happen, something will happen. You almost kind of escaped a nuclear war. आप imagine करें कि आप जब सोचते हैं कि सब कुछ देख लिया है. Never a dull day. Never a dull day. अगर आप पाकिस्तानी ना हो तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है जर्नलिज्म के लिए. लेकिन आप पाकिस्तानी भी हैं, ये आपकी अपनी ज़मीन है, ये आपके बंदे हैं, ये आपके अपने शहर हैं, ये आपके अपने गोट हैं, अपने गांव हैं, इनसे आप बंदों से ज़्यादा मिलते हैं. सो बट इन अ वे I cannot take the Pakistani out of my journalism. Of course, yeah. So जब आप इतनी डेथ और डिस्ट्रक्शन और बेचारगी देखती हैं तो उसका ज़रा ह्यूमन लेवल के ऊपर भी आपका बहुत असर होता है. मैं अफगानिस्तान में मैंने कवर किया है, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी मैंने कवरेज की है, श्रीनगर के अंदर जाके जिन माओ के बच्चे जो हैं वो उठा लिए गए हैं, उनके घरों में मैंने जाके कवरेज किया. सो ह्यूमन लेवल पर भी आप इंगेज करते हैं. लेकिन इट्स बेस्ट टू, इफ यू वांट टू क्राई, जस्ट क्राई. If you want to help, do help.
So do things that are productive and purposeful from the people's point of view. So मेरे ख्याल में if you have a sense of purpose कि यार ये मैं हो सकता है मेरे काम से कुछ लोगों को फर्क पड़ जाए, तो आपका मन थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है. So these are not just stories. This is what your life is. You could be the victim. This traffic hadsa could have happened to you. This could have happened to your family. So you just cannot take your emotions out of it. लेकिन फिर क्या करें, स्टोरी भी तो आपने कवर करनी होती है. सो इन अ वे यू डायरेक्ट योर इमोशंस टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ योर स्टोरी. उससे बचत हो जाती है थोड़ी सी. And then when you come back to your hometown, your base, family का कोई role होता है to help you get over it, because obviously they can see that. I think they family tolerance of the nature of your work वो बहुत ज़रूरी है. मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपना काम जो है घर ना लेके आऊँ, लेकिन अब क्या करें, मीडिया इस किस्म का है कि काम वो खुद ही घर भेज देते हैं. हर वक्त घर आता रहता है. 24/7 kind of job you have. आप रोक नहीं सकते. चले 24/7 भी हो, घर से बाहर नहीं रुक सकती. हर वक्त फोन अवेलेबल है, हर वक्त टीवी चल रहा है, सोशल मीडिया है. सो आपका काम घर से बाहर आप रख नहीं सकते. तो घर वालों की जो पेशेंस है, एंड देन यू हैव टू आल्सो ड्रॉ अ लाइन के अब मेरे ख्याल में ये घर वालों का वक्त शुरू हो गया है. सो इट इज वाइटल. दिस इज द मोस्ट unrecognized and unaccounted for element of any professional's life, how the family supports them. वो होता है ठीक है, बेगम ने बड़ा सपोर्ट किया ना होता है, but what type of support, that is absolutely important. इसके अलावा काम हो नहीं सकता. Sanity, you can't remain sane. बिल्कुल. From what you've shared so far, I feel that for you this is a purposeful life. It's not just reporting and recording and making stories. It comes across as your purpose. Lekin this is your purpose, and then you have your loved ones. Inki taraf you have a duty to play. Kabhi prioritize kiya purpose over family for the greater good? No, I think they can coexist. Technology allows you to do that. जहाँ पे काम का बर्डन बढ़ाया, वहाँ पे प्रोसेसिंग की आसानी भी कर दी है इसने. सो बहुत सारा काम जो आप को घंटों लगते थे, अब आप मिनटों में कर सकते हैं. AI को अगर आप सही टूल्स इस्तेमाल करें तो अच्छी रिसर्च कर सकते हैं. किताबें आपके फिंगर टिप के ऊपर है. प्रोडक्शन आप अपने घर के अंदर आराम से कर सकते हैं. What I'm saying is कि technology has allowed you to have more me time, to have more family time. I'm a person who doesn't have a social life profile. So that's the way I want to keep it. So सारा का सारा घर के साथ, and I train my own kids. I teach them. I spend a lot of time with them. School में को मैं तो स्कूल में पढ़ाता भी बच्चों के लिए रहा हूँ. I've been teaching for the past 12-14 years now. So so the rest of the time is for them. So you can do it with new technology. You can do it. Initially it was difficult, but now technology allows you to do it. हम बात कर रहे थे हादसात की और ये सब. जर्नलिज्म में आपका क्या ख्याल है कि जर्नलिस्ट कैसा किरदार प्ले कर सकता है? सो व्हेन एवर वी आर फेसिंग अ सिचुएशन लाइक रेडिकलिज्म है या वॉरफेयर वाली सिचुएशन है, तो सिविक रेजिलियंस में जर्नलिस्ट का क्या रोल है जो आपके ख्याल में आया वो प्ले कर रहे हैं या करना चाहिए? देखिए, मैं तो नंबर्स में नहीं जाऊंगा. अब आजकल तो जिसके पास मोबाइल है वो समझता है वो सहाफ़ी है. Agreed. और जिसके पास अपना प्लेटफॉर्म है वो समझता है कि मीडिया हाउस है. और जो खुद फिल्म करके कर सकता है वो कहता है बहुत बड़ा रिपोर्टर. और करंट अफेयर्स का भी वही बंदा. सो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर 19 करोड़ लोग जिनके पास मोबाइल्स हैं वो समझते हैं वो सहाफ़ी हैं. सो लिहाजा मुझे नहीं समझ आती कि हम इसके अंदर कितना रोल प्ले कर सकते हैं. लेकिन मैं कोई नंबर्स की गेम में नहीं हूँ. मेरा मानना यह है कि मेरी फील्ड ने अब हिट करना है कोर ऑफ पाकिस्तान, थिंकिंग कोर. इश्यूज उनके लिए हाईलाइट करके देने हैं, फ्रेम करके देने हैं, फैक्ट्स उनके सामने रखने हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑफर करने हैं, इनसाइट्स ऑफर करने हैं. तो अगर मैं 4-5 काम कर रहा हूँ तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा कितने लोग मुतासर हो रहे हैं. मैं इसमें जाऊँगा कि क्या मैं 5 काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. तो अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग अ न्यूट्रल स्टैंस. यू कांट रियली, एज आई सेड, फैक्ट्स आर नॉट न्यूट्रल. Facts are very, very biased because some will be beneficiaries of facts, others will be at the receiving end of facts. And facts will change opinions, and opinions can translate into huge advantages and disadvantages for the power game.
सो आपको फैक्ट सामने रखने हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑफर करने हैं, इनसाइट्स, एंड यू रियली हैव टू बी कॉम्पिटेंट एट व्हाट यू डू. यानी आप अगर उर्दू में बोल रहे हैं तो आपको कम से कम, जो हम कहते हैं कि इतनी आपके पास सहूलत मुयस्सर हो ज़ुबान की कि आप अपना पैगाम नशर कर सकें. ये कोई उर्दू का इम्तिहान नहीं है आपका, लेकिन जो आपको काम करना है उसके लिए तो आपको फंक्शनैलिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो होनी चाहिए. और आपको अपने जो शोबे के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना है. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वो नाजुक और तेज मोड़ नहीं काटे जिसको काटते वक्त कुछ तकलीफ का आपको सामना करना पड़ता है. तो लिहाजा देख फेल ऑन द वे साइड. सो देखिए, मैंने जो शुरू किया, मैंने आपको बताया, मैंने पेपर पर एडिट करना शुरू किया, एंड आज आई जनरेट AI जनरेटेड वीडियोस for my STH, not all of them, but experimental basis के ऊपर. So from simple pen and paper to AI generated work, you must know how many turns this road has taken. तो ये जर्नलिस्ट को ये काम करना है, लेकिन लोग इससे असर लेंगे या नहीं लेंगे, आई डू नॉट नो. क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि हर किसी का ख्याल है कि वो साफ़ी है. एवरीबडी हैज़ फिगर्ड आउट द यूनिवर्स. उनसे आप बात करें ना तो वो सबको सब solutions उनके पास हैं. With respect to that, you are also an academic. आप पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देते हैं, and I also feel that's another purpose, the higher purpose that you have, to leave behind a legacy. What are the core values that you would like to instill in your students who are pursuing the field of journalism? Journalism, या any other field, देखें, you got to find what you love in your field. And as Bukowski said, find what you love and let it kill you. That doesn't mean you should commit suicide doing it. Obviously not. But what it really means is कि आपको give it your best shot. And your best shot can always have a better shot. You remember that. So, and failure is not getting it right. Failure is not doing it again. You will never get it right. Even now, I can't get it right. But I'm doing it better than before. So, मेरा failure सबसे बड़ा ये होता है अगर मैं करता ही ना. So, मैं तो उनको पहली बात ये कहता हूँ कि अपने काम के अंदर ना passion invest करना है. I mean, Saad Khan didn't do what he did because he was making tons of money out of it. Poets and writers didn't do poetry or wrote because they were making money out of it. Okay, there was no money attached to it. They were driven people. So drive को आपको लेके आना है और competence आपकी field में होनी चाहिए. One thing that really puts me off is incompetence and laziness and lethargy. And attitude built on these strange pillars. So the more incompetent you are, the bigger your attitude. I think what competence tells you, it makes you humble. It tells you that you could do better. So मैं उनको यही बताता हूँ कि जो भी काम करें अपने passion के साथ करें, and invest your best energies and never balk at difficulties. Wonderful. Talking about failures, let's go back in time. जब आपने PTV World पे एक इंग्लिश में आपने शो लॉन्च किया था, न्यूज़ नाइट. जी, उर्दू का था टाइटल, उसका इंग्लिश का था. ओह, ओके. उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई ऐसी स्टोरी हो जो अब आपको लगता है कि ये तो बहुत बेहतर तरीके से हो सकती थी. एंड सारा प्रोजेक्ट बेहतर हो सकता था. मेरा ड्रेस कोड बेहतर हो सकता था, मेरा मेकअप बेहतर हो सकता था, मेरा तलफ़्फ़ुज़ बेहतर हो सकता था, मेरी लाइटिंग बेहतर हो सकती थी, मेरे सवाल बेहतर हो सकते थे. ये एक फ़नी चीज़ है वैसे जो आपने बात की कि अगर आप प्रोफेशनली एडवांस स्टेज के ऊपर हैं तो मेरा रवैया ये है, हालांकि दूसरे रवैये भी मौजूद हैं, कि यू लुक बैक एंड से इफ आई हैड डन दैट वे प्रॉब्ली इट वुड हैव ट्रांसलेटेड इनटू दैट. द अदर रवैया है कि यार मेरी क्या बात है, सो मैंने तो जो कर लिया तो कर लिया. I think you need to really reflect in a more introspective way and say, what way, why did that happen? So when you reflect on your past, you can actually learn lots of new things. तो सारा कुछ ही बेहतर हो सकता था मेरे ख्याल में.
I don't really care about my critics because I am the biggest critic of my own work. Right. So मैं अपने काम को बहुत उधेड़ता हूँ. I am eternally unhappy with my work. Eternally. Is that healthy? It's very healthy. Because you don't want to live in La La Land. You don't want to say कि मेरी क्या बात है. Because that's a slippery slope. मैंने बहुत बड़े-बड़े, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के अंदर हूँ, प्लेयर्स को तबाह होते देखा है. जब उन्हें ये समझा कि they are bigger than the game. I am not bigger than my profession. A cricketer is no bigger than the game itself. A soccer player will not be bigger than the soccer game itself. Ronaldo will never say कि जी मैंने figure out कर लिया, जो मैं soccer खेलता हूँ, तो he is still subject to, a golfer will still be subject to the dynamics and mechanics of the field. So अगर आपको ये समझ आ जाए ना, तो फिर you do not put yourself above that field. So मेरा हमेशा ये होता है कि we could have done it better. जब ये प्रोग्राम्स में मैं करता हूँ फील्ड में, तो अब जो मेरे साथ ट्रैवल करता है कैमरा क्रू, मुनवीर प्रोड्यूसर साथ होते हैं. अब मुझे याद है आपने जिक्र किया कि दिस डिज़ायर टू डू बेटर. अब हम बलूचिस्तान में हमने हेली के अंदर जा रहे हैं, तो फ्लड ही कवर कर रहे थे. तो आई हेट फ्लाइंग, लेकिन मैंने जितने हेलीज में मैंने सफ़र किया, दुनिया कोई हेली नहीं है जिसके अंदर मैंने सफ़र नहीं किया. तो वो एक बर्ड है जिसके नीचे आगे से वो शीशा उसका यूं आया होता है, तो आपके आधे पाँव जो है ना उसके ऊपर आए होते हैं. तो वो यूं टेरेन नीचे चल रही है, हेली उसके साथ है. टेरेन आपको नज़र आ रही है ना, तो आपको टेरा फर्मा नज़र आ रहा है कि जी टेरेन है, अगर ऊंची है, लेकिन एंड देन यू हैव दिस वैली एंड दिस डेप्थ एंड यू गो लाइक दिस. तो अब जब मैं यूं बैठा हूं, तो मैंने अपने साथ प्रोड्यूसर को मैंने कहा कैमरा तैयार रखें. यू नो व्हाट ही सेड? उसने कहा सर आपने यहाँ पे क्या फिल्म करना है? नीचे खाई है जो नजर नहीं आ रही, सामने आसमान है नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या फिल्म करना है? तो मैंने कहा फिर भी यू नेवर नो, यू मे गेट समथिंग. सो वो अभी भी जोक है कि यार, आई मीन ही वुड टेल यू टू रेडी द कैमरा इवन व्हेन देयर इज नथिंग टू फिल्म. तो एंड एवरी टाइम आई ब्रिंग बैक विजुअल्स, आई वुड से यार अगर वो विजुअल फिल्म कर लेते ना. So it's healthy because it keeps you curious. Otherwise, you become lazy because you've done everything, been there, done that. So I'm not that guy. No. लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर ग्रेटफुलनेस का या ग्रैटिट्यूड का एलिमेंट कम हो जाता है? नहीं, it's a gratitude here. It's a gratitude here because I'm thankful for whatever is happening, and I'm not going to rest on my laurels, and I'm going to search for more. So इससे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड क्या होगा कि अल्लाह ने आपको जो इस्तिताअत दी है, आप उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं. वो किसी ने पूछा कि खुदावंद ताला के सामने आप जाके कैसे सुरखरू होंगे? उसने कहा जी मेरी नेकियां इतनी नहीं है, लेकिन मैं ये जाके कह दूंगा कि अल्लाह तूने मुझे जितना टैलेंट दिया है मैंने उसको एग्जॉस्ट किया है. तो अल्लाह में हौसला खुश हो जाए कि जो मैंने उसको इस्तिताअत दी थी. तो दिस सर्च फॉर द बेटर वर्जन ऑफ यू, आई थिंक इट कीप्स यू humble. But if you think that you have arrived, my God, the arrogance of that attitude, I've seen, that's an affliction. So on screen, अक्सर हमने देखा है, स्पेशली ऑन एयर जब कोई लाइव शो होता है, अक्सर जर्नलिस्ट की कोई ना कोई बात को मतलब कट कर दिया जाता है, शो ही पूरा ख़त्म हो जाता है. स्पेशली जब कोई ना कोई ऐसे पॉलिटिकल टाइम्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल टाइम्स होते हैं वो. फर्स्टली क्या आपने ये चीज़ें फेस की हैं? एंड देन सेकेंडली जब आप व्हेन यू बीन पुट ऑन द स्पॉट, कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड? मुझे ही कट कर दिया था 3.5 साल. मैं तो टीवी पे गया ही नहीं, तो टीवी के शो की कट की अब क्या बताऊँ. तो 3.5 साल तो मैं तो आई वॉज नॉट ऑन एयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म फॉर 3.5 years. Was a separate story altogether. Doesn't really chime with your interview. No, but I'm sure we would love to. Yeah. लेकिन coping mechanism देखें, बड़ी सिंपल बात है. Journalists can have large egos, so large that the egos can walk in front of them. Try to really not have that ego, because you don't want to be the story yourself. Okay, circumstances do make you the story sometimes, and I've been in stories more than I would really wanted to be in, but I am not the story. So number one, you're not the story. So if you're censored, you are not the story. Censorship is the story. So focus on the story. Number two, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि never do your last story.
You live to write another day. You live to fight another day, yes, but live to write another day. And eventually, everything passes. This too shall pass. So, and everything passes. So censorship passes, and dictatorships pass, and oppression passes. So be there when the tide is turning in your favor, because you are the ultimate drafter of history. So मेरा ये होता है कि पहले बहुत गुस्सा आता होता था. You felt personally injured. But then I learned कि यार it really isn't about me. Yes, I happen to be there, but really it isn't about me. Gaza wasn't about me. Floods were not about me. Censorship is not about me. I may be the person around which the story seems to be revolving, but it's not about me. So when you create that kind of a mental, personal detachment and depersonalize it, coping becomes easier. फिर आप हर चीज को सर पे सवार नहीं करते कि मेरे साथ ये हो रहा है. हमारे वैसे ही रोने की आदत भी बहुत है कि हर वक्त ऑल द बैड थिंग्स आर हैपनिंग. आप एयरपोर्ट पे जाएं तो लोग रो रहे होते हैं, क्यों जी नानी जो है वो हज करने जा रही है. फिर आप आए तो फिर रो रहे होते हैं, क्यों नानी हज करके आ रही है. बट इसमें नानी एंड हज आर म्यूटेबल, रोना इज कांस्टेंट. सो हमें बहुत सारा कंप्लेन करने की आदत है. And we like to kind of, pretend it's all about me. I think most of the things are not about me as a journalist. And might I ask, what did you do in those 3 years? Were you writing? Should I tell you everything? I don't think I should. Duck stories will become super duck stories then. Look, they pay me for my passion. Even when I was making no money, my first salary check was 1,135 rupees. And the PN was getting 2,200 rupees. And I was an A grader from a pretty reputable university in a fairly reputable discipline called IR. So I was a journalist then, and now people look at our salaries and all that and say, "Ki aap to paise ke liye kaam kar rahe hain." But sorry, I was a journalist when it did not pay us a pittance. For decades, 1989, 90, 2000, 2002, I was editor of the News, one of the largest selling newspapers of Pakistan at that time, and I was drawing 27,000 rupees. 30,000 थे, 2,500 tax करता था. So I'm not in it for money. But money is tied to it. तो मैंने फिर 2-3 काम पकड़े, कंसल्टेंसी बढ़ा दिया, फिर मैंने फॉरेन न्यूज़पेपर्स के लिए लिखना शुरू कर दिया. खैर वो भी बंद करवा दिया उन्होंने बीच में. फिर मैंने स्कूल में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, मैंने 6 पढ़ाने शुरू कर दिए ताकि कीप्स मी गोइंग फाइनेंशियली. खैर वो बीच में कोविड भी आ गया, तो कोविड में खर्चे वैसे कम हो गए थे, ना कहीं जाना, ना खाना, ना पेट्रोल, ना गाड़ी. यू मस्ट हैव सीन, इफ यू लुक एट योर बिल्स फ्रॉम कोविड टाइम्स, दे हैड रियली ड्रॉप्ड एक्सेप्ट फॉर द हेल्थ बिल. But yeah, those were tough years, but that's okay. Take the low with the high. Yeah, you've moved on. I never stayed there. So people used to say कि आप करते क्या हैं? So I started my YouTube. मैंने उससे पहले शुरू कर दिया था. It took me 9 months to make my first $17. 9 months, $17. And people used to say कि आप जिस तरह टीवी के बारे में कहते हैं ना कि ये तू संजीदा सहाफ़ी है, तो क्यों टीवी कर रहे हैं भाई, आप ना करें. तो हमें इन्होंने नाम रख दिया था यूट्यूबिया. पहले उस वक्त कोई नहीं करता होता था. तो इतने बड़ा आप सहाफ़ी हैं, CNN के लिए, टाइम मैगजीन के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, ये वो. अब आप इतनी छोटी स्क्रीन के ऊपर फंस गए हैं. बट आई गेस वी वर रियली अहेड ऑफ टाइम, एंड देन नोबडी वाज डूइंग इट व्हेन वी वर डूइंग इट. So then now everybody is doing it. So you turn every compulsion into an opportunity. That's what it is. Yeah. Let's just talk about that. आप YouTube पे भी हैं, अभी भी कॉलम भी लिखते हैं, आप टीवी पे भी आते हैं, और आप लेक्चर्स भी देते हैं टू लाइव ऑडियंस ऑफ स्टूडेंट्स. सारे डिफरेंट मीडियम हैं. How do you tailor your messaging, your style, and your personality maybe? Look, there is no one size fit all. अगर आपने बच्चों से बात करनी है तो you have to kind of dumb it down to their level. So जिस तरह मैंने आपको बता रहा था कि you have to learn their language, you have to learn what Dululu means,
what Sululu means. So then you say that Dululu has no Sululu. And then they can really relate to you. Yeah, But if you were to sort of, throw big words, bookish words at them, they will not be able to. So communication is all about engagement. So you tailor your message according to the audience. That's important. When you're talking to the bureaucrats, senior bureaucrats, you have a different language, different style, different communication, different flow. It's both an art and a science. Science says that know thy audience. The art is tailor your message accordingly. So, you have to reflect on it. But back end के ऊपर तो सारा research है ना, सारी understanding है. और I don't talk on issues which are not in my field. जो मुझे पता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा. वरना बहुत सारे लोग आते हैं जी इस पर भी बात करें. मैंने कहा यार मेरा शोभा नहीं है. You're asking the wrong guy है. But there's also a tendency to be, to have a TOE, a theory of everything. And people are talking about हमारे पास दोस्त हैं वो रमजान की ट्रांसमिशन भी कर रहे होते हैं, तराने भी गा रहे होते हैं, मुहर्रम भी कर रहे होते हैं, क्रिकेट के ऊपर भी बातें कर रहे होते हैं, करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, लोगों की बातें भी कर रहे हैं, परफ्यूम भी लॉन्च किया. मैं कहते हैं यार मेरा मतलब है कमाल ही है वैसे आपका, बहुत ही आप मल्टी टैलेंटेड हैं, या आपको कोई काम भी नहीं आता और आप सारे काम करते हैं. But I'm saying is कि how could you? I can understand that in this day and age you probably will have 2 or 3 careers because accomplishment time has shrunk. But really, are you good at everything? ये मुझे कोई हजम नहीं होता. I think it still stands true. Jack of all trades, master of none. Yeah, but Jack still could do trade in all trades, but these Jacks can't do trade in even their own trade. There still are trademarks, which is kind of a compliment to the generosity of Pakistan's market. यहाँ पे सब चलता है. Talking about that with reference to YouTube, so it's a different medium than TV per se, and so do you feel कि YouTube पे आपको ज़्यादा space मिलती है to voice yourself, to give your opinions with more transparency as opposed to TV? TV is censored. TV is censored. Papers are censored. देखिए ये जो है ना, विद फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं अब आपको टीवी का बताऊं और यूट्यूब का बताऊं. यूट्यूब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपने STH की ब्रांड की क्या है, और टीवी के ऊपर मुझे कितना फ्रीडम है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का. टीवी के ऊपर मैं जो प्रोग्राम कर लूंगा, अगर उसके अंदर कोई चीज़ कट गई मैं सेंसर बोर्ड पर डाल दूंगा. टीवी के ऊपर अगर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आ गया तो मैं कह दूंगा जी ये तो उनकी पॉलिसी है. टीवी के ऊपर अगर आएगा मैं कहूँगा जी कि मैंने तो किसी और तरीके से रिपोर्ट किया था, ये गलत रिपोर्ट हो गया है. अखबार में लिखूंगा, मैं कहूँगा जी मैंने तो आर्टिकल की हेडलाइन नहीं लिखी थी, मेरा तो कोई और मकसद था, वगैरह वगैरह. और इनएविटेबल आर्गुमेंट, ना छापते, ना एयर करते, मैंने कंटेंट प्रोड्यूस करके हवाले कर दिया है तो क्यों नहीं रोका इन्होंने. ये मेरे पास प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं. ऑन माई ओन ब्रांड आई डोंट हैव दिस प्रोटेक्शंस. आई एम माई ओन ब्रांड. I decide what goes on air. I decide every word. I decide every picture. I decide every headline. And what I say is squarely on me. So आपको लगता है फ्रीडम बहुत है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है आप समझे वो बहुत ज्यादा है. वहां पे अपने घामड़पन को, अपनी बेवकूफी को, अपने चौगतपन को आप किसी और पर नहीं डाल सकते, और कोई इदारा आपको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है. You're alone against Rome. So therefore, I am far more stringent when it comes to my editorial policy about my own platform, because I know it's really on me. So freedom तो है, लेकिन responsibility भी बहुत है. Yeah. कोई ऐसा वाकया जिसमें बहुत बुरा बैकलैश आया हो from the general public? एक हो तो बैकलैश तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही आता रहता है. So वो बॉट्स का ज्यादा होता है frankly. And I have a heavy censorship policy. You have the right to criticize. You have no right to abuse. You have the right to say what you want to say. You have no right to scandalize. So all those who are watching this, you get to abuse me only once. Then you're blocked forever. So look at my calls and look at my जो block करता हूँ हजारों में है. मैंने बंदे रखे हुए जो block करते हैं. And we don't block criticism, we block abuse. And I think anybody who's facing that abuse, you need to fight back. Social media ने और ये digital media ने आपको freedom ये नहीं दिया कि आप स्नाइपर बैठ जाएं और फेक आईडीज बनाएं और उधर से बैठ के जो ऑल फॉल बकते रहें. हिट बैक, that's very important to retain sanity.
तो बहुत सारे वाकयात हैं। एक मैं आपको बता सकता हूँ, है थोड़ा सा एम्बैरेसिंग ही, चले वहाँ एम्बैरेसिंग पार्ट के ऊपर मैं वो लगा देते हो, नहीं उसको कर देंगे, मफल कर देंगे। तो थंबनेल बनाया एक मेरी टीम के मेंबर ने, उसके ऊपर कोई ऐसी उल्टी सीधी उन्होंने साइन लगा दिया, मैंने देखा नहीं, मैंने प्रोग्राम बनाया, वो थंबनेल चल गया। उसके बाद जो तबाही, ये देखा तलत हुसैन, ये इनकी ये करते हैं, ये थंबनेल से बनाते हैं। तो उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता रहा वो बंदे को भी। मैंने कहा यार तुमने किया क्या है? उसने कहा सर मुझे समझ ही नहीं आई थी ये साइन था क्या, तो मैंने ये लगा दिया। सो बहुत ही एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। Did you end up firing them? I ended up temporarily suspending them, but I have a very small team. He's a good guy, and he learned from that mistake. और अब हमने फिर उससे खुद देखा, अब हमने every picture, every sentence, वो हम लगा। एक में हमने बहुत सर्कुलेट कर रही थी, वीडियो चला दी, वो वीडियो पुरानी थी। अब हम हर वीडियो के ऊपर, हर पिक्चर के ऊपर जो है फैक्ट चेक लगाते हैं, जो AI आपको मुहैया करता है। सो हमने फिल्टर्स ऐड करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था, बिकॉज आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू पुट दैट काइंड ऑफ इमेज। मैं तो वो हेडलाइंस भी नहीं लगाता जो लोग आजकल लगा सकते हैं और उससे ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। सो बहुत एम्बैरेसिंग था। तौबा। Yeah. Let's talk about your vision for Pakistan's media future. क्या लगता है आपको, keeping everything aside, politics वगैरह सब कुछ, the young generation is still here, brain drain तो हो चुका है काफी, but still there's so many of us who are still here in this country. देखिए, एक तो ब्रेन ड्रेन की जो बात करते हैं तो उनका ख्याल है कि ब्रेन जो है वो लिमिटेड सप्लाई में नहीं है, कितना ड्रेन करेंगे। अब आपने जो बाकी ट्रेन नहीं किए तो वो आपका गेन नहीं बन रहा, वो आपकी कोताही है। तो लोगों को जाने दे बाहर, पढ़ने दे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, और अब पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव डेवलप करने दें। हाँ, आपने अगर वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं खौफ में, परेशानी में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खौफ को एड्रेस करें। लेकिन एक हल्लाशेरी भी होती है, एक ट्रेंड बना होता है। ये जो स्टोरीज थी, जो बंदे जो है, गुजरात की एक स्टोरी थी, फैमिली को मैं चेस कर रहा था, जिनके बंदे जो है वो फेरी डिजास्टर के अंदर मर गए बेचारे, सिंक करके वो जा रहे थे यूनान से, मेरे ख्याल में यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इट सैंक एंड दे डाइड, फॉलोड द स्टोरी। उसने मुझे बताया कि वो 30-40 लाख रुपए लगा के गया था। मैं सोच रहा हूँ 30-40 लाख रुपए जिस बंदे के पास, उसके हालात बड़े खराब तो नहीं होंगे? Yes. इतने खराब तो नहीं होंगे टू पुट योर लाइफ एट रिस्क। लेकिन करते हैं लोग। और आप लोगों की मजबूरियां मुझे समझ आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी एक बन गया है, रवैया बन गया। ओ जी बड़े हालात खराब है, मुझे पता है, रोने की, नानी जा रही है, दादी जा रही है, फिर भी रो रहे हैं, वापस आ रही है फिर भी रो रहे हैं। तो देयर इज दैट टेंडेंसी। तो ब्रेन गेन जो है वो आप लोगों को ट्रेन करेंगे तो घर के अंदर ब्रेन गेन हो जाएगा। यंग जनरेशन बहुत लेजी है, इट्स नॉट अ कंप्लेंट, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। रीसेंट रिसर्च शोज के जो जनरेशन जी है, इफ इट वर टू लिव, one person were to live 78 years, nearly 17 years will be spent doing what? Scrolling. 17 years scrolling, not reading, not processing, scrolling. तो जिसके 17 साल इस पे गुजरेंगे तो उस जनरेशन ने क्या करना है? लेकिन इनके पास दे शार्प माइंडेड, क्लूड अप बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टूल्स इनके पास मौजूद है, तो इनके पास शॉर्ट कट्स मौजूद हैं। हमारी तरह इनको माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं करनी। इनके लिए रोप्स लगी हुई हैं, प्रोवाइडेड दे आर एबल टू यूज दोज रोप्स। सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू हार्नेस दिस टेक्नोलॉजी and whether you want to turn it into a social tool of entertainment. Australia has come up with a law says कि आपने 16 साल के बच्चों के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होंगे, टिकटॉक नहीं होगी, इंस्टाग्राम नहीं होगा, यूट्यूब नहीं होगा, up against the giants of telecom industry and digital industry. और अगर आपने डिलिबरेटली प्लेटफॉर्म्स प्रमोट किए तो इंडस्ट्री को होगा। ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव मुल्कों की बात नहीं कर रहे हैं।
फिनलैंड के अंदर जो एजुकेशन है उसको आप गैजेट से हटा रहे हैं, नॉर्वे के अंदर एजुकेशन को गैजेट से हटा रहे हैं, हम गैजेट्स अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो कहने का मकसद ये कि इट्स व्हाट यू डू विद दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस पूल ऑफ, if the pool is harnessed the right way, this country will do wonders. But if you don't do it, frankly, it will go in the wrong direction. So मेरी hope ये है कि media will swing it the right way for the people. मैं बड़ा cynical हूँ इसके बारे में, शायद uphill task हो, लेकिन TV as we know it will become redundant. Nobody watches TV now. You know, they watch TV on mobiles. Not that they don't watch TV. They don't watch TV on television screen. They watch TV on mobiles. So journalism, as we know it, print will fade away, hard copies, but digital editions will be there. And I think 5 years down the line, you will have AI-generated anchors. So no cost of makeup, no dress codes, and everything looks beautiful. Desks will become AI-driven. Reports will become AI-driven. So a lot of technology, a lot of redundancy in media I see. अभी तो आपके पास ये कैमरा क्रू वगैरह बैठा हुआ है, मॉडर्न स्टूडियो की इनकी ज़रूरत नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, लाइट्स खुद ही एडजस्ट हो जाती हैं उसके मुताबिक, और एक बंदा बैठ के जो है वो कर रहा है, क्वाइट स्टूडियोज होते हैं. A lot of HR will become redundant. So मीडिया में मुझे काफ़ी तलातुम नज़र आ रहा है. Yeah. But then what's the alternative? How do these people Adapt. need to, and how should they adapt? Adapt, learn new skills, upskill. 40% of the jobs as it exists today, 2024 की report है, which was submitted to the World Economic Forum, written interestingly by half Swiss and half Pakistani, a female. Brilliant report. वो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको. 40% of the jobs as they exist now, 10 years down the line, they would cease to exist. तो जब आप समझते हैं कि आपने 10 साल का तजर्बा हासिल कर लिया, वो जॉब ही खत्म हो गई है. And 60% जो बाकी बच गया, उसका 80% will require upskilling. So आप बच तो गए हैं, लेकिन upskilling अगर आप नहीं की तो you're on the edge. And you could, career adaptation will be, you know, like every 3 years. हो सकता है आपका career change हो जाए. तो ये हमारा sense है ना कि हमारा एक ही career है. No. So you need to be multi-career oriented, multi-talented, multi-skilled, adapt, learn. That's the new way of the job market. Yeah. Agreed. I am loving this entire conversation, but just in the best interest of time, I'll have to close this with one last question. Generally, people know you as a writer, as an academic, anchor person, a TV person. Who are you other than that people don't know? A person is many persons. And we all know that. We all are different persons. So I'm not just one person. That's what the answer is. Right. Is there anything that excites you, which you want to do, let's say, next 5 years? Next 5 years? You know, at my age, you set your goals kind of low. I don't want to fall ill. I think I should write perhaps a book. That's another duck story. I started like 3 books. I couldn't complete them. I wrote like 30,000 words for one, 28,000 words for another, 42,000 words for yet another. Didn't complete them. So I probably should write a book. Yeah, and just survive. Set goals low. Yeah. Well, Talat Saab, thank you so much for appearing on the show, and it was wonderful and insightful learning from your experiences. I'm happy it was worth it, yeah. Yeah, I'm sure our audience will take away a lot from this. Thank you so much.